Start. Yes. Very good evening, boys and girls. I welcome you to yet another session of CA Foundation Economics. We started with a new chapter, the theory of market and price determination under different forms of market. So we have started with a new chapter, जो कि है जो है theory of market and price determination under different forms of market. इसके अंदर हम कल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट समझ रहे थे. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में लास्ट डिस्कशन ऑफ हेडिंग हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द डिफरेंट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कॉम्पिटिशंस वी हैव, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशंस वी हैव, जिसके अंदर पहला टाइप हमने क्लियर किया है जो कि है परफेक्ट कॉम्पिटिशन. Now let's move on to the next heading, that is monopolistic competition. There is a slight of difference between monopolistic and perfect competition. It is with respect to the commodity which is being sold. What did we learn in perfect competition? All the commodities which are being sold in a perfect competition are homogeneous, or the goods which are sold in the market in such kind of competition are homogeneous or identical. इस वजह से हम इसे एक theoretical market मानते हैं. कल मैंने आपको प्रूफ भी किया, ऐसा कोई मार्केट नहीं हो सकता जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स देखे जा सकते हैं. हेंस परफेक्ट कंपटीशन इज अ theoretical market. Perfect competition is a theoretical market. हाँ या ना? Perfect competition is a theoretical market. आज हम देखेंगे सेकंड टाइप जो कि है monopolistic competition. Monopolistic competition is a market where there are relatively large number of sellers, relatively large number of buyers dealing in differentiated goods. Dealing in differentiated goods. Market where there are relatively large number of sellers and buyers, where there are relatively large number of sellers and buyers dealing in differentiated goods. Dealing in differentiated goods are called as monopolistic competition. इस तरह के मार्केट सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटा? Monopolistic competition. There are large number of sellers and relatively large number of buyers, but they are less than perfect competition. Very large number of sellers, very large number of buyers कहां पर है? Perfect competition. उससे थोड़े कम number of sellers, कम number of buyers हम कहां देखेंगे? कहां देखेंगे? There is also free entry and free exit of new firms in the market. There is free entry and free exit of new firms in the market, and there are selling and transportation cost. There are selling and transportation cost. On the basis of selling and transportation cost, the seller tries to differentiate his commodity from the others, right? Now let's take an example. My dear friends, the most commonly market you find in case of competition these days around you is nothing but monopolistic competition. It's nothing but monopolistic competition. Monopolistic competition is the market situation where there are relatively large number of sellers, large number of buyers dealing in differentiated goods. We can take any example. Let's start with toothpaste. अब मुझे जितने आपको टूथपेस्ट के नाम मालूम है वो सब बताओ. 2 मिनट. मैं आदमी एक हूं, कान मेरे दो है, भले दो चीजें एक बार नहीं सुने, एक दोनों कान से भी एक ही चीज एक बार सुन सकता. रेज योर हैंड एंड आंसर. रेज योर हैंड इफ यू विश टू आंसर. रेज योर हैंड इफ यू विश टू. विको पेस्ट. रेज योर हैंड एंड आंसर. पतंजलि दंत कांति. पेप्सोडेंट. सेंसोडाइन. डाबर. क्लोजअप. कोलगेट. मिसवा, my brand. Next,
विटोबा पाउडर है क्या वो? पाउडर में भी दो तरह के रहे, एक वो कोयले जैसा काला काला आता देख, वो कौन सा है? काला खट्टा। बबुल आया ना, डाबर बबुल, डाबर लाल दंत मंजन, लाल मंजन। बेटा ओरल भी ब्रश होता है, टूथपेस्ट नहीं है। क्या जनरल नॉलेज गंदा है तुम्हारा? हाँ हाँ, आयुष टूथपेस्ट, आयुष, आयुष नाम का टूथपेस्ट है क्या? है क्या? पर आयुष। और बता। अम्मा अम्मा अम्मा, और कौन सा है? हाँ, और बोलो। मिक्स वेज। और कोई बचा है? संस्कृति कोई नाम बताओ ना टूथपेस्ट का। हाँ, आता है बारबी का टूथपेस्ट? हाँ, जॉनसन्स का टूथपेस्ट आता है क्या? अबले बच्चों का अलग आता है, कौन सा आता है? और कोई टूथपेस्ट? सेंसोडाइन हो गया। और कोई टूथपेस्ट? हिमालय का टूथपेस्ट नहीं आता रेडी। एम्बे, हाँ, एंकर टूथपेस्ट। और बोलो। हाँ, है क्या टूथपेस्ट? हाँ, सेंसोडाइन हो गया। चलो मोस्टली सब आ गए। चलो हाँ, उठला टूथपेस्ट नहीं आता उसका। ओरल भी इसका बोला हिमालय। सेंसोडाइन हो गया। MDH सारे। और कोई? चलो मोस्टली सारे टूथपेस्ट हमने कवर कर लिए। अब देखो सभी चीजें टूथपेस्ट है, सभी चीजों की यूटिलिटी है कि वी यूज इट फॉर ब्रशिंग आवर टीथ और क्लीनिंग आवर टीथ, राइट? लेकिन ईच ऑफ द कंपनी इज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट। कैसे? ये विको वाला बोलता है कि हमारे नमक में पूरा आयुर्वेदिक है, दंत कांति वाला बोलता है हमारे जितना प्योर टूथपेस्ट तो किसी का ही नहीं है, 100% नेचुरल। रामदेव बाबू बोलते हैं 100% नेचुरल जड़ी बूटी से बना है हमारा दंत कांति पतंजलि टूथपेस्ट। पेप्सोडेंट डेंटिस्ट के द्वारा प्रमाणित नंबर 1 टूथपेस्ट। सेंसोडाइन सेंसिटिविटी से छुटकारे के लिए टूथपेस्ट सेंसोडाइन। डाबर, हाँ डाबर
डाबर मजबूती, मजबूत दांत के लिए डाबर। क्लोजअप ताजगी। उसके आईडी, उसके ऐड बहुत मस्त आती, क्या आप क्लोजअप करते हैं? वो लड़का तो सुबह सुबह ब्रश करता, हाँ, सब ऐसे लड़के इर्द गिर्द बनाने लगती है। ताजगी, ऐसी ताजगी और कहा। कुछ नहीं होता बेटा तेरा, तू क्लोजअप लगा, कुछ भी लगा, कुछ नहीं हो सकता। कोलगेट वाला क्या बोलता, हमारे टूथपेस्ट में नमक। माँ का भरोसा। मैं क्या बोल रहा, माँ का काका क्या बोल रहा? मैं तो ही बोल रही माँ, माया यो। माया यो मिसवा ना, मुझे मालूम मिसवा क्या बोलेगा, सादा सीधा है। मैं दिनेश सर द्वारा प्रवन। विठोबा, विठोबा की टैगलाइन क्या है रे? विठोबा का टैगलाइन क्या है? जड़ों की मजबूती। लाल मंजन, हल्दी, एक बार खाओ खुद जान जाओ, एक बार घसो खुद जान जाओ। नहीं क्या, ईंटों से बना। आयुष, आयुष की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? शाह का वारिस। ये क्या, हवा मां? बोलो जुबा केसरी। ये क्या आंसर लिखा? इडेंट, एमवे, एंकर, एक्वा फ्रेश, ओरल बी और हिमालय पर्वतों से बना। बोलने का मतलब क्या है? देखो, अगर हम कंपेयर करें इतने सारे सेलर्स है टूथपेस्ट के, तो कैन आई से देयर आर रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स? रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अनडाउटेडली एवरीवन इज सेलिंग टूथपेस्ट, but are they selling identical or homogeneous goods? How do we characterize the goods which are being sold under monopolistic competition? They are differentiated goods. They are differentiated goods. Goods जो बेचे जा रहे हैं मोनोपोली के अंदर, they are differentiated goods. They are differentiated goods. Yes or no? Goods क्या है? Differentiated goods है. Goods क्या है? Differentiated goods. Differentiated goods are sold under monopolistic competition. There are relatively large number of sellers. There are relatively large number of buyers. Major चीज क्या याद रखनी है हमें? Differentiate goods. Goods जो बेचे जा रहे हो कैसे हैं? Differentiate. They are not homogeneous. इसका एग्जाम्पल बहुत ले सकते हो आप। टू व्हीलर में कितने ब्रांड है? बहुत सारे। फोर व्हीलर में कितने सारे ब्रांड है? बहुत सारे। कपड़ों में कितने सारे ब्रांड है? बहुत सारे, राइट? तो सारे एग्जांपल्स किसके हुए? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ या ना? हम खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितने सारे ब्रांड है? देन अगेन इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द कंपटीशन मार्केट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं, 2, 4, 5। जैसे पेट्रोकेमिकल के हमारे पास 5-6 कंपनियां हैं, तो वो रिलेटिवली बहुत कम है। अनलाइक द पेप्स, ये टूथपेस्ट हमें तो 17-18 मालूम थे, हमने पता कर ली। इससे अलावा भी और 10-12 और लोकल कंपनियां रहेगी, तो रिलेटिवली सेलर्स क्या है? थोड़े ज्यादा है। जैसे साबुन में अगर देख लो आप, सोप में
सोप, डिटर्जेंट, इन सभी के अंदर बहुत सारे कंपनी, रिलेटिवली अच्छे खासे कंपनी है, तो ये सारे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट, जैसे हम अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, फिर रिलायंस, फिर उसके अलावा आपका शेल और एसआर, ये 6 लोग ही है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। So can I say the sellers are relatively large in numbers? No, they are few in numbers. So when we have few in numbers of sellers, then that is oligopoly. That is not perfect. That is not monopolistic competition. Monopolistic competition और आपके oligopoly के बीच का फर्क कहां से निकलेगा? तो number of sellers के काउंटिंग से हमें समझ में आएगा कितने ज्यादा और कितने कम। अभी ओके, राइट? सो इस वाले मार्केट के अंदर सबसे मेन बात क्या है? डिफरेंशिएटेड गुड्स को हम सेल करते हैं। इसके अलावा क्या है? लार्ज, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसके अलावा देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, राइट? जूली दंत मंजन नया आ रहा है मार्केट में, कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एंट्री कर सकता है, राइट? और जूली दंत मंजन की वजह से सेंसोडाइन दंत मंजन बंद हो गया, तो वो बाहर चला गया मार्केट में से। तो मार्केट में कोई भी आ सकता है नया, और मार्केट से कोई भी बाहर निकल सकता है। देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन द मार्केट, राइट? देयर आर सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो, हर एक कंपनी अपना टूथपेस्ट बेहतर बताने में लगी है, तो हर किसी को अपना टूथपेस्ट दूसरे की कंपनी से बेहतर बताना है, तो उसके लिए क्या इनकर करना पड़ेगा? उसे सेलिंग कॉस्ट। क्या इनकर करना पड़ेगा? सेलिंग कॉस्ट। जिस रीजन में कोई नई प्रोडक्ट बेचता है वहां जाकर टूथपेस्ट बेचना पड़ेगा, उसके लिए क्या इनकर करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो ये टाइप ऑफ मार्केट कंसीडर करता है कि सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। चीजें जब बेची जाती है वो डिफरेंशिएटेड गुड्स होती है। यहां पर प्राइस का कंपटीशन उतना नहीं करता कोई। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर प्राइस को लेकर उतना कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अल्टीमेटली 100 ग्राम का टूथपेस्ट 18 ब्रांड का मैंने बताया, 1 रुपए 2 रुपए इधर उधर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का 100 ग्राम का टूथपेस्ट 10 रुपए में मिल रहा है तो दूसरे कंपनी का 100 ग्राम का टूथपेस्ट 30 रुपए में 25 रुपए में बिकेगा। जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसका मार्केट शेयर अच्छा है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये लोग दूसरे लोकल ब्रांड से 2-1 रुपए ज्यादा महंगा बेचेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा हम प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं देखते। नॉर्मली डिफरेंशिएटेड गुड्स है, लेकिन प्राइस में डिफरेंशिएशन मेजर नहीं देखा जा सकता इस टाइप ऑफ मार्केट। आई गेट माय पॉइंट? समझ में आया? अगली बात है मोनोपोली की। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। पॉली का मतलब होता है सेलर। पॉली का क्या मतलब होता है? सेलर। मोनोपोली, सिंगल सेलर। अ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज मोनोपोली। मान लो पूरे परभनी के अंदर सिर्फ विष्णु अकेला दूध वाला है, अकेले विष्णु की डेयरी है, पूरे गांव को सिर्फ विष्णु दूध वाले मामा जो है दूध सप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे बिजनेस पे, डेयरी इंडस्ट्री पे विष्णु की क्या है? मोनोपोली है। सो पूरे इस डेयरी इंडस्ट्री पे विष्णु की क्या है? मोनोपोली। क्योंकि विष्णु को छोड़ के पूरे परभनी में डेयरी इंडस्ट्री में और कोई भी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट सेलर नहीं है। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज सिंगल सेलर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। हमारे एग्जांपल में कौन है? विष्णु। देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मिल्क पाउडर सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मिल्क पाउडर की चाय कॉफी में मजा नहीं आती। तो एकदम करीबी क्लोज सब्स्टिट्यूट हम मिल्क का नहीं देखते। देखते हैं क्या? देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, राइट? सो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी भी मोनोपोली सिचुएशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो मोनोपोली नहीं टिकती। क्यों नहीं टिकेगी? लेट्स से झंडू बाम की मोनोपोली है, झंडू बाम की मोनोपोली है, उनका एक क्लोज सब्स्टिट्यूट टाइगर बाम मार्केट में आ गया। क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन आ गया उनका? टाइगर बाम। झंडू बाम का क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में टाइगर बाम आ गया। ऑटोमेटिकली मोनोपोली सिचुएशन में जो पैसा वो कमा रहा था, अल्टीमेटली वो लोग कस्टमर किधर टर्न होना शुरू कर देंगे? टाइगर बाम की तरफ। जब तक झंडू बाम को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, हर कोई क्या खरीद रहा था? झंडू बाम, चाहे वो जो जाम पे जो। लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूट कुछ अवेलेबल हो जाएगा, लोग क्या करेंगे? उसका सब्स्टिट्यूट खरीदना शुरू कर देंगे, अगर झंडू बाम महंगा बिकने लगा तो, राइट? तो मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जहां सिंगल सेलर तो होना चाहिए,
साथ साथ उस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट रहा तो मोनोपोली नहीं टिकती, क्योंकि मोनोपोली में जो बायर रहते हैं फिर वो किधर शिफ्ट होने लगते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। अगर विष्णु की मोनोपोली है और विष्णु का बिजनेस देख के जूली बोली मैं भी अपना दूध का बिजनेस शुरू करूंगा, मैं भी अपनी डेयरी खोलूंगा। अब मुझे बोलो, एक न्यू फर्म अगर मार्केट में एंट्री करता है, एक न्यू फर्म अगर मार्केट में एंट्री करता है तो मार्केट में कितने सेलर हो जाएंगे? मार्केट में कितने सेलर हो जाएंगे? मोनोपोली रहेगी क्या? फिर मोनोपोली कब तक रहेगी? जब तक मार्केट में सिंगल सेलर है। सो मोनोपोली में न्यू फर्म की एंट्री अलाउड होगी क्या? होगी क्या? राइट। सो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन मोनोपोली। जो मोनोपोली रखता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट में और कोई उसका कॉम्पिटिटर आए, क्योंकि जैसे ही मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ गया वहां पे मोनोपोली विष्णु की खत्म हो जाएगी। आई गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस लीडिंग टू एबनॉर्मल प्रॉफिट। पूरे गांव में सप्लायर कौन है? विष्णु। तो जो दूध हमारे घरों में रोज सुबह सुबह आता है उसका दाम कौन तय करेगा? विष्णु बोला 70 रुपए, डू वी हैव ऑप्शन? विष्णु बोला 100 रुपए, डू वी हैव ऑप्शन? तो इस सिचुएशन का फायदा लेकर क्या एब्नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली सिचुएशन में जो मोनोपोली रखता है सेलर, क्या वो कमा सकता है? यस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटा लेट से मोनोपोली नहीं है, तारे, प्रेम, ध्रुव, जूली, फिर अपना अजीत दादा, फिर अपना ये छी बच्चा, भाले, ये सब जन दूध वाले हैं। अब ये क्या हुआ? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये क्या हुआ? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी सिचुएशन में हमारा विष्णु 60 रुपए में बेच रहा है, महंगा बेच रहा है, बोला नहीं मैं तो दूध महंगा बेचूंगा 60 रुपए में। अजीत दादा बोला ऐसा है क्या? फिर उसके कस्टमर खींचने के लिए वो जो दूध पर लीटर है उसका दाम लगेगा 50 रुपए। क्या करेगा दाम? वो 50 रुपए। तो सारे लोग किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? अजीत दादा की डेयरी पे। है नहीं है? राइट है नहीं है? तो कंट्रोलिंग कर पाते हैं कि प्राइस के ऊपर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं। आप सस्ता तो ठीक, नहीं देंगे तो कोई और देगा, जो सस्ता देगा उसके पास से लोग जाके लेंगे। ये कहां पर होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली में ऐसा होता है क्या? नहीं। आप जो बोलोगे वही सही। लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई दूसरा सेलर है, ना उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे सिचुएशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना मोनोपोली में आसान है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जहां आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं उनके बीच में सर्वाइव करना, प्रॉफिट कमाना, डू यू थिंक एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे आप? ज्यादा दाम पे चीजें बेच के एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा पाओगे? नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा दाम पे रखकर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने की सोचो, आपका कस्टमर आपसे चीजें लेगा ही नहीं, वो इमीडिएटली दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें कहां देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली सिचुएशन में, सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली सिचुएशन में। नेक्स्ट, ओलिगोपोली। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? ओलिगोपोली। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? ओलिगोपोली. Oligopoly is a market situation where there are few sellers of the commodity and large number of buyers. Few sellers, large buyers. Petrochemical products. It's a oligopoly. It's a oligopoly. पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत लिमिटेड कंपनी है हमारे पास, लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले खरीदार उसके बहुत ज्यादा है। इस तरह के मार्केट सिचुएशन को हम कहते हैं ओलिगोपोली. फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, large number of buyers is oligopoly. Large number of sellers, large number of buyers dealing in differentiated goods is monopolistic competition. Single seller कौन है? Monopoly. Large number of sellers, large number of buyers dealing in homogeneous goods क्या है? Perfect competition. The few sellers operating with mutual consent and restrict the new entrant. अभी 5 लोग ही है, अब वो बोले ठीक है चलो मोनोपोली नहीं है, लेकिन हम 5 लोग मिलके ही इन पेट्रोलियम कंपनियों को चलाए, 5-6 लोग मिलके। क्या वो चाहेंगे और छठा सातवां कोई व्यक्ति आए, फ्यू की जगह थोड़े लार्ज नंबर हो? क्योंकि जैसे सेलर बढ़ता है मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो ये जो 5-6 लोग ये बोलते ठीक है अपन 5-6 है ना, ठीक है, और अभी नया कोई आने को नहीं होना। बात समझ में आ रही है? अभी कॉमर्स की क्लासेस के प्रबंधन की सिचुएशन क्या है? कितने क्लासेस है कॉमर्स के? मेजरली 3। पहली वाली जो मैं छोड़ के आया वो, एक हमारी और एक देशमुख सर की। तो ये क्या सिचुएशन हुई? एक मोनोपोलिस्टिक,
मोनोपोली, क्या है फिर ओलिगोपोली। साइंस की क्लासेस का क्या हाल है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मार्केट कपड़े की दुकान का क्या हाल है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बात समझ में आ रही है सारी। किराना दुकानों का क्या हाल है, कॉमनली क्या दिखता है हमें, कॉमनली क्या दिखता है हमें, थोड़ा रेयरली क्या दिखेगा, ओलिगोपोली, और बहुत रेयरली क्या दिखेगा तो मोनोपोली। बहुत रेयरली जो दिखेगा वो क्या है फिर मोनोपोली, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे रेलवे क्या है, रेलवे क्या है, रेलवे क्या है, न्यूक्लियर क्या है, क्योंकि वहां पे कौन है, सिर्फ गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी अभी जो हमारे एमएससीबी है, परभनी की बात कर रहे हैं हम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई जहां पे टाटा वगैरह सप्लायर है। मुंबई के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वहां ओलिगोपोली है, वहां पे टाटा का, रिलायंस का और एमएससीबी का, तीनों का कनेक्शन चलता है। रिलायंस का और का प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वहां पे टाटा का भी है। तो मुंबई का एमएससीबी क्या है, मुंबई का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या है, ओलिगोपोली। परभनी में क्या है, परभनी में क्या है, टूरिज्म ट्रैवल्स वाले का क्या हाल है, मोनोपोलिस्टिक। कितने सारे ट्रैवल्स है, क्या है वो, मोनोपोलिस्टिक। आई गेटिंग माय पॉइंट। रेलवे में क्या है, लेकिन एयरलाइंस में क्या है, ओलिगोपोली। एयरलाइंस में क्या है, ओलिगोपोली। टू व्हीलर में क्या है, मोनोपोलिस्टिक। टू व्हीलर में क्या है, मोनोपोलिस्टिक। फोर व्हीलर में क्या है, मोनोपोलिस्टिक। आई गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है बाइफर्केशन, समझ में आ रहा है बाइफर्केशन, हाँ या ना। प्राइसेस आर ऑल्सो कंट्रोल्ड अंडर ओलिगोपोली। अभी ये 6 लोग क्या बोल रहे हैं, अपन 6 लोग मिलकर पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं लेकिन एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो प्राइसेस हम आपस में तय करके सबको प्रॉफिट मिले, इस हिसाब से हम काम करते हैं। ये कब होगा, जब सेलर फ्यू इन नंबर्स हो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर का तालमेल होने की कोई संभावना है क्या, नहीं। जितने कम लोग रहेंगे उतना ज्यादा तालमेल रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब यहाँ पे नए कंसेप्ट के साथ हमें मिलना है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इसके पहले हमने क्या देखा, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू संस्कृति, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू संस्कृति है, तो संस्कृति है। आज से हम तेरे को संस्कृति बुलाए, छी बोल रही हो हाँ, संस्कृति, इशिता, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, रिया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू स्नेहल, अंजलि, अंजलि ये गलत है तुम्हारा, हाँ, सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। उससे सिंपल एग्जांपल है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, बाप रे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये संडे को एग्जाम चैप्टर नंबर 2 पूरा चैप्टर, नेक्स्ट संडे का एग्जाम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट संडे का एग्जाम थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसके नेक्स्ट संडे का एग्जाम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कंबाइंड। ओके, 100 मार्क्स। टोटल रेवेन्यू। मीनवाइल अगले 3 हफ्ते चैप्टर नंबर 2 की 50 मार्क की एमसीक्यू की एग्जाम होती रहेगी। कंसेप्ट टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट क्या है, cost of producing all the units of output is called as total cost. What is total revenue with the same sense? The amount of sale proceeds realized from selling all the quantity sold is called as revenue. जितना भी चीज हम बेचकर जितना पैसा कलेक्ट करेंगे वो सारा पैसा क्या है,
रेवेन्यू। बिजनेस का क्या होता है वो? रेवेन्यू। बिजनेस में चीजें प्रोड्यूस की जाती है, प्रोड्यूस करने के बाद हम उसे सेल करते हैं, वो चीजों को सेल करके जितनी क्वांटिटी सेल करोगे उसका एक प्राइस रहेगा। तो क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू जितना पैसा जमा होगा वो मेरा क्या होगा? रेवेन्यू। क्या होगा बेटा? रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ फर्म रियलाइजेस बाय सेलिंग डिफरेंट गुड्स। अ फर्म रियलाइजेस बाय सेलिंग डिफरेंट गुड्स। अलग अलग डिफरेंट गुड्स को बेचकर जितना पैसा रियलाइज होता है, जितना क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस जो बेचकर चीजें बेचकर हम पैसा रियलाइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। लेट से मेरे पास 10 टेबल थे, मैंने एक टेबल को 1000 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो पूरा पैसा कितना कलेक्ट हुआ मेरे पास? 10,000। सो टोटल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सो कैन आई से टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? हो कि नहीं? मुश्किल है ऐसा, पीछे का रिवीजन नहीं करोगे तो। ये वाला यूनिट तभी समझ में आएगा, पीछे का रिवीजन करना कॉस्टिंग का, कॉस्ट का। अगर कॉस्ट वाला चैप्टर, क्योंकि यूनिट नंबर 3 पूरा एसएससी, एलएसी, टीसी उसी के ऊपर है सब, एटीसी, एएफसी, एवीसी सब उसके ऊपर ही है। फिर वहां पर बोलना अरे ये तो कुछ नया नया दिख रहा सर ने पढ़ाया हुआ, ऐसा मत बोलना, फिर मुझे मत बोलना समझ में नहीं आया मार्केट। अब टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। देन व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ commodity sold, per unit of commodity sold is nothing but my average revenue. Let's say मेरा total revenue जो चीजों को बेचकर इकट्ठा किया था वो है 10,000 रुपए, और कितनी चीजें बेची मैंने? 10। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा? 10,000। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा? 10,000। टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा? 10,000 बरोबर। 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1,000। व्हाट इज 1,000? एवरेज रेवेन्यू, और रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। Therefore total revenue is equal to price multiplied by quantity. Q stands for quantity sold. XYZ Private Limited sells 50 units of fan at a rate of 100 per unit. What is my total revenue? Price multiplied by quantity, 1000 multiplied by 50 is equal to 50,000. Average revenue. Revenue per unit of output or quantity sold is called as average revenue. Average revenue is total revenue divided by quantity sold. Ambuja Sounds, it's not Ambuja, it's Ahuja. Ahuja Sounds Limited have a total revenue of 1 lakh rupees from selling 2000 speaker. Ahuja कंपनी जो है साउंड सिस्टम की, उन्होंने 2000 स्पीकर बेचे, और 2000 स्पीकर बेच के उन्होंने 1 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। Now we have to calculate average revenue. Average revenue is the revenue per unit of quantity sold. Average revenue is equal to total revenue divided by quantity, that is 1 lakh divided by 1 lakh divided by 2000 is equal to 50. What is 50 rupees? Average revenue collected from selling 1 unit of speaker. Average revenue collected from selling 1 unit of speaker. Yes or no? What is marginal? Marginal means change. Marginal utility means change in utility due to change in consumption. Yes or no? फिर इसके बाद देखा था हमने मार्जिनल रेवेन्यू, फिर उसके बाद हमने देखा था मार्जिनल प्रोडक्ट. चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल कॉस्ट, change in cost due to change in output is my marginal cost. On the same line, marginal revenue means change in revenue. So how we will define marginal revenue? Change in revenue due to change in quantity sold is called as my marginal revenue. एक टेबल को बेच के मैंने 1000 रुपए का टोटल रेवेन्यू इकट्ठा किया, 2 टेबल को बेचकर मैंने 2200 रुपए का जो टोटल रेवेन्यू इकट्ठा किया. सो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड यूनिट में कितना होगा? 2200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1200 इज इक्वल टू 1200. 1200 क्या है मेरा?
मार्जिनल रेवेन्यू 1200 क्या है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू एट सेकेंड यूनिट. So what is marginal revenue? Change in revenue due to change in quantity sold is called as my marginal revenue, or you can say additional revenue generated from selling every additional unit of a commodity. That additional revenue which is generated is nothing but my marginal revenue. Marginal revenue is equal to additional revenue generated from selling every additional unit of the commodity. Marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in quantity, or total revenue at n minus total revenue at n minus 1. हर जगह पर टोटल, मार्जिनल और एवरेज फॉर्मूले एक जैसे ही, खाली नाम बदले, यूटिलिटी, प्रोडक्ट, कॉस्ट और रेवेन्यू, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट सेम है. मार्जिनल मतलब चेंज, एवरेज माने पर यूनिट, टोटल मतलब पूरा, बरोबर आया ना, और एवरेज यानी पर यूनिट. इज इट ओके? और मार्जिनल मतलब चेंज. नाउ एबीसी फर्म, अभी देखो यहां पे सब चीजें कैलकुलेट करना है. ABC firm have a total revenue of 1000 from selling 100 pens. So what is my average revenue? 1000 divided by 100 is equal to 10. So 10 is the average revenue or revenue per unit of pen which is being sold. The total revenue increases from 120 from sale of 102 units. 100 पेन जब बेच रहा था मैं, जब 100 पेन बेच रहा था तब टोटल रेवेन्यू कितना था मेरा 1000. अब 102 पेन बेच रहा हूं तब कितना है 1020. तो अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? अभी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, दैट इज 120 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 102 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10. व्हाट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू? 10. What is my average revenue? 1000 divided by 100 is equal to 10. फिर बाद में 1020 divided by 102, that will be my average revenue. Is it okay? दो अलग अलग सिचुएशन है. दूसरे वाले सिचुएशन में हम 102 पेन बेचते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं 1020. So 1020 divided by 102 will be my average revenue. Are we okay? कंसेप्ट समझ में आए? कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब यहां देखो यूनिट 1 टोटल रेवेन्यू 10, सो एवरेज रेवेन्यू विल बी 10 एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल आल्सो बी 10. 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट और 10 यूनिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अलग अलग यूनिट है. पहले वाले यूनिट में 10 रुपए, दूसरे वाले यूनिट में टोटल रेवेन्यू है 18, तीसरे में 24, चौथे में 28, पांचवें में 30 और छठे में 30, सातवें में 28, आठवें में 24, 90 में 18 और 10 में 10. ये मेरा टोटल रेवेन्यू है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्वांटिटी विच इज बीइंग सोल्ड. हाया ना? दिस इज माय टोटल रेवेन्यू विच इज जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. सो व्हाट इज माय एवरेज देन? 10 divided by 10 is 1, 18 divided by 9 is 2, 24 divided by 8 is 3, 28 divided by 7 is 4, 30 divided by 6 is 5, then 30 divided by 5 is 6, 28 divided by 4 is 7, 24 divided by 3 is 8, 18 divided by 2 is 9. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं आप? पीछे वाले नीचे वाले देखता हूं. देखो अब यहाँ टोटल रेवेन्यू कितना है 10, पहले कितना था 18 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 8. यहाँ पे कितना था 18 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 6. यहाँ कितना है 30 माइनस ऊपर वाला कितना है 30 इज इक्वल टू 0. इस हिसाब से हम सारा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कैलकुलेशन करते हैं. टेबल समझ में आया? टेबल समझ में आया क्या? हाँ या ना? यस और नो? अब हम टोटल रेवेन्यू कर्व को ऑब्जर्व करते हैं. पहले इसमें 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर 30, फिर 28, फिर 24, फिर 18, फिर 10. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. कितने स्टेजेस है? कितने हैं? 3 स्टेजेस है. ओके, 3 में से पहला स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. इंक्रीजिंग रिटर्न में इनपुट तो हम चेंज करते हैं लेकिन आउटपुट ज्यादा फास्ट स्पीड से चेंज होता है. स्टेज 2 क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन कम स्पीड से बचता है. स्टेज नंबर 3 डिक्रीजिंग रिटर्न.
इनपुट ज्यादा लग रहा है, आउटपुट कम निकल रहा है। तो जब स्टेज 1 में हम रहेंगे जहां इनपुट कम लग रहा है, आउटपुट ज्यादा निकल रहा है, तो वहां टोटल रेवेन्यू मेरा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा, बरोबर। तो यहां तक देखो मेरा बढ़ता जा रहा है 6ठे यूनिट तक। फिर उसके बाद टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे कम होने लगता है, कब? डिमिनिशिंग रिटर्न में। और जैसे ही थर्ड स्टेज में हम चले जाएंगे, इनपुट ज्यादा लग रहा है, खर्चा ज्यादा लग रहा है, आउटपुट जितना आ रहा है उसके मुताबिक टोटल रेवेन्यू मेरा कम आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे हम क्या करना करेंगे? लॉस इनकर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि थर्ड स्टेज में अगर हम चले गए तो हमारे पास खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो हमारे पास क्या रहेगा? बड़ा ऑब्वियस, लॉस। जब फर्स्ट स्टेज में रहेंगे, खर्चा कम है, कमाई ज्यादा है, तो क्या है? प्रॉफिट। सेकंड में क्या है? खर्चा 100 है, प्रॉफिट भी मतलब कमाई भी 100 है। तो यहां पर टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है लेकिन नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान कहां से शुरू होगा? खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो फिर जहां से वो हमारा क्या होगा? नुकसान। तो यहां अगर हम टोटल रेवेन्यू को ऑब्जर्व करें, शुरुआत में वो बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद फिर स्लो डाउन हो रहा है, और फिर अचानक से वहां से वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, राइट। अगर हम एवरेज को कंफर्म करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे क्वांटिटी सोल्ड मेरा बढ़ रहा है वैसा वैसा मेरा एवरेज रेवेन्यू कम होते जा रहा है, राइट। एज द क्वांटिटी सोल्ड इज इंक्रीजिंग, एवरेज रेवेन्यू, ये देखो एवरेज रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग। एज द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, as the quantity sold is increasing, my average revenue is decreasing. So can I say the average revenue curve is downward sloping from left to right? Quantity बढ़ने की वजह से average revenue कम हो रहा। So how is the relationship? Inverse. जब inverse relationship हो तो downward sloping from left to right. So how will be my average revenue curve? Downward sloping from left to right. Marginal revenue curve भी downward sloping है, 8, 4, 2, 0, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो 0 हो रही है और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव पे हो रहा है। तो मेरे मार्जिनल रेवेन्यू कब कैसे होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कटिंग द एक्स एक्सिस एंड मूविंग बिलो द एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? दो मिनट डायग्राम दे। ये देखो, ये मेरी टोटल रेवेन्यू कर्व किधर है बेटा? ये नीचे वाली मेरी टोटल रेवेन्यू कर्व है। नीचे वाली टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे? क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा था बेटा मेरा? शुरुआत में बढ़ रहा है, पहले 0 था। जब 0 क्वांटिटी सोल्ड था तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 0। टोटल रेवेन्यू कर्व की शुरुआत कहां से होगी? फिर ओरिजिन से, कहां से शुरुआत हुई? धीरे धीरे एक लेवल तक आकर बढ़ गया। ये बढ़ने के बाद फिर वो क्या होने लगा? धीरे धीरे घटने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया? फिर वो घटने लगा। हाँ या ना? यस और नो? तो रेड वाली क्या हुई मेरी? टोटल रेवेन्यू कर्व। एम आई ओके? एम आई ओके? हाउ इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व? द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, downward sloping from left to right. How is the marginal revenue curve? Marginal revenue curve is also downward sloping from left to right, but it also cuts the x-axis and goes below the x-axis, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एवरेज कभी भी 0 नहीं होता, तो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये मेरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये फॉलिंग भी है, प्लस एक पॉइंट के बाद 0 हो जाती है, उसके बाद ये बिलो द एक्स एक्सिस जाती है। तो ये मेरी हो गई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अगर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट देखें, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द कैलकुलेशन पार्ट, यू कैन सी, जैसे यहां पर हम देखो, मार्जिनल रेवेन्यू भी घट रहा है, लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन घट रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है। जैसे क्वांटिटी हम सेल बढ़ा रहे हैं वैसे दोनों भी कम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्पीड से कम कौन हो रहा है? ज्यादा स्टीप कौन रहेगा? मार्जिनल। एवरेज रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन उतना स्टीप है क्या? नहीं। इस हिसाब से हमारे ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और टोटल रेवेन्यू कर्व दिखते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि हाँ या ना? यस और नो?
So this is my average revenue curve with the red curve, the marginal revenue curve with the blue curve, and the average revenue curve with the green curve. Are we okay? Are we okay? How is the average revenue curve? Average revenue curve is downward sloping from left to right. The marginal revenue curve is also downward sloping from left to right. Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? बरोबर है कि नहीं है? अभी के लिए इतना ही है क्योंकि आगे कंसेप्ट पूरे नए हैं तो उसको बीच में नहीं लेना आएगा. That's all for today. See you tomorrow. Thank you.